بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بستری کے 20 طریقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ہمارے پاس ہم بستری کے بارے میں بہت سے سوال آتے رہتے ہیں۔ کئی سارے لوگ ہم سے ہم بستری کے بارے میں بہت سے سوال کرتے ہیں، جیسے کہ اسلام میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا کیا طریقہ ہے، بیوی سے ہم بستری کیسے کرے، کیا کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا چاہیے، کیا بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا چاہیے۔ اس طرح کے بہت سے سوال ہم سے اکثر پوچھے جاتے ہیں، اسی لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے جس میں سبھی سوالوں کے ایک ساتھ جواب سبھی کو ایک ہی ویڈیو میں مل جائے۔ اس ویڈیو میں ہم نے ہم بستری کے وہ سبھی طریقے بتائے ہیں جو اسلام میں حلال یا حرام ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ اسلام میں ہم بستری کرنے کے کون سے طریقے حلال ہیں اور کون سے طریقے حرام ہیں۔ دوستو، ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اسی لیے میری آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں تک ویڈیو کو شیئر بھی کر دے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بیوی سے ہم بستری کرنے کے دوران بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو اسلام میں حرام ہیں، جن کے بارے میں نہ جاننے کی وجہ سے وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو مکروہ ہیں، انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بستری کے دوران جو کام حرام ہیں وہ تو بالکل نہیں کرنے چاہیے، لیکن جو مکروہ ہے انہیں بھی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور ہم بستری میں جو کام حلال ہے، یعنی کہ وہ کام جسے کرنے کی اجازت اسلام میں دی گئی ہے، صرف انہیں ہی کرنا چاہیے۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ پہلا سوال، حیض کے دوران بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر کا اپنے عضوائے تناسل یعنی اپنی شرمگاہ رگڑ کر منی خارج کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیریڈ کے دوران یعنی حیض کے دوران بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور ہم بستری کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے مرد یا عورت اپنے جنسی خواہشات پوری نہیں کر سکتے، اس کی اجازت اسلام میں نہیں دی گئی ہے۔ اسی لیے حیض کے دوران بیوی سے ہم بستری نہ کرے اور نہ ہی اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے طریقے کو اپنائے۔ نمبر 2، کیا بیوی اپنے شوہر کا عضوائے تناسل کو پکڑ کر یعنی شوہر کی شرمگاہ پکڑ کر اس کو فارغ کر سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ کیا بیوی اپنے شوہر کی شرمگاہ پکڑ کر مالش کر کے اس کا منی نکال سکتی ہے، جسے ماسٹربیشن کہا جاتا ہے یعنی مستجنی؟ اسلام میں یہ ناجائز اور حرام ہے، پھر چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا بیوی کے ہاتھ سے کروائے، دونوں ہی ماسٹربیشن کہلائیں گے۔ بیوی اپنے شوہر کا عضوائے تناسل کو پکڑ کر یعنی شوہر کی شرمگاہ پکڑ کر اس کو فارغ کرتی ہے، اس کا منی نکالتی ہے، تو وہ بھی مستجنی ہی کہلائے گا۔ اسلام میں اسے ناجائز اور حرام کہا گیا ہے، اسی لیے ایسا ہرگز نہ کریں۔ نمبر 3، کیا ہم بستری سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں؟ ہم بستری سے پہلے شوہر اپنی بیوی کا اور بیوی اپنے شوہر کے کپڑے اتار سکتی ہے، مطلب میاں بیوی دونوں ہم بستری سے پہلے ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مکمل ننگے ہونا یا ننگے ہو کر ہم بستری کرنا یہ درست نہیں ہے، اسی لیے ایسا کرنے سے بچیں۔ سوال نمبر 4، کیا بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا چاہیے؟ کیا یہ جائز ہے؟ پیارے دوستو، پچھلا حصہ یعنی بیوی کی شرمگاہ کا پچھلا حصہ یعنی بیک سائیڈ کے راستے سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسلام میں بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا حرام ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو ایسا کرنے کو کہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو منع کر دے اور سمجھائے کہ یہ حرام ہے، ایسا کرنے سے ہم دونوں گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اسلام میں حرام کام ہے۔ نمبر 5، بیوی کی شرمگاہ کو چومنا یا منہ میں لینا کیسا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آج کل کے نوجوان جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح کی حرکت نہایت ہی غلط درجے کی حرکت ہے اور حرام ہے۔ شرمگاہ ایک گندی جگہ ہوتی ہے، وہ نکاسی کی جگہ ہوتی ہے، جسم کا گندا پانی وہاں سے باہر نکلتا ہے جو ناپاک ہوتی ہے، اور اگر وہ منہ میں چلی جائے تو حرام ہے، اسی لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، بیوی کے پستانوں کے بیچ کیا شوہر اپنا نفس رگڑ کر اپنی منی نکال سکتا ہے اور اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟
इस वीडियो का पहला सवाल भी लगभग इसी के मुताल्लिक था, जिसमें मैंने बताया था कि इस्लाम में अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बताया गया है, और वो है बीवी से हमबिस्तरी करके अपनी ख्वाहिश पूरी करना। इसके अलावा किसी भी दूसरे तरीके की इजाज़त इस्लाम में नहीं दी गई है, तो इसीलिए ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बीवी के पिस्तानों के बीच में अपना नफ्स रगड़ना सही नहीं है। अगर आप अपने आप को फारिग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, क्या मियाँ बीवी यानी शोहर और बीवी दोनों रात को नंगे होकर एक साथ सो सकते हैं? अगर दोनों नंगे होकर एक साथ सोते हैं तो क्या गुनहगार होंगे? मियाँ बीवी रात को एक साथ नंगे होकर सो सकते हैं, इसमें गुनाह तो नहीं होगा, मगर ऐसा करना सही नहीं है। तो इसीलिए पूरी तरह मुकम्मल नंगे होकर मत सोए, ऐसा करना बेहतर नहीं है। नंबर 8, बीवी के आंखों पर कपड़ा बांधकर और बीवी के हाथ पैर बांधकर खेलते हुए हम बिस्तरी करना, या बीवी अपने शोहर के आंखों पर कपड़ा बांधकर हाथ पैर बांधकर हम बिस्तरी करे, खेलते हुए करे, तो ऐसा क्या करना सही है या नाजायज़ है? मियाँ बीवी दोनों की रजामंदी अगर हो तो ऐसा कर सकते हैं। मतलब अगर मियाँ बीवी राज़ी है तो शोहर बीवी की आंखों पर कपड़ा बांध सकता है और खेलते हुए हम बिस्तरी के इरादे से बीवी के हाथ पैर भी बांधकर ऐसा कर सकता है, और हम बिस्तरी भी कर सकता है, मगर रजामंदी दोनों की होनी चाहिए। इसी तरह बीवी भी अगर शोहर के साथ खेलते हुए हम बिस्तरी करने के इरादे से ऐसा करना चाहे तो वो भी ऐसा कर सकती है, और इसमें भी रजामंदी दोनों की होनी ज़रूरी है, मगर बार बार ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 9, क्या शोहर अपनी बीवी के मुंह को छोड़कर पूरे जिस्म पर कहीं पर भी मनी खारिज कर सकता है? अगर शोहर बीवी के जिस्म पर मनी खारिज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मुस्तज़नी कर रहा है, और मैंने पहले भी बताया कि इस्लाम में मुस्तज़नी करना हराम है, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी अपनी जिनसी ख्वाहिशात केवल एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी के तरीके से पूरा कर सकते हैं। नंबर 10, बीवी के पूरे जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज़ लगाकर जिस्म को चाटना कैसा है? मतलब बीवी के जिस्म पर कहीं पर भी चॉकलेट क्रीम वगैरह लगाकर उसके जिस्म को चाटना, क्या ये सही है? तो सुने, बीवी के जिस्म को ज़ुबान से चाटना ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपको प्यार करना है तो आप बीवी के पेशानी, गाल या होठ को चूम सकते हैं, पर पूरे जिस्म को चाटना ये दुरुस्त नहीं है। ये इंसानों का नहीं, जानवरों का तरीका है। आपने अक्सर देखा होगा जब जानवर प्यार करते हैं तो एक दूसरे के जिस्म को ज़ुबान से चाटते हैं, तो इसीलिए इंसान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अब रही बात जिस्म पर चॉकलेट या कोई मीठी चीज़ लगाकर चाटने की, तो ये भी वेस्टर्न कल्चर है और बहुत ही वाहियात कल्चर है। मुसलमानों को गैर मजहबी तरीके बिल्कुल भी नहीं अपनाने चाहिए। नंबर 11, क्या बीवी अपने शोहर के नफ्स को अपने हाथ में पकड़कर खेल सकती है या चूम सकती है? शोहर का अपनी बीवी के पूरे जिस्म पर हक होता है, और उसी तरह बीवी का भी अपने शोहर के पूरे जिस्म पर हक होता है। बीवी जब चाहे अपने शोहर के जिस्म के किसी भी हिस्से को छू सकती है, पकड़ सकती है, खेल सकती है और चूम भी सकती है, मगर शर्मगाह को छोड़कर। शर्मगाह को चूमना या उसके साथ खेलना ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। बीवी को अपने शोहर के शर्मगाह के साथ खेलना या चूमना नहीं चाहिए। इसके अलावा देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, मगर बिला ज़रूरत ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नंबर 12, क्या शोहर अपनी बीवी के शर्मगाह के साथ हाथ से खेल सकता है या बीवी की शर्मगाह को हाथ से छू सकता है? इस सवाल का भी वही जवाब होगा जो पिछले सवाल का था। शोहर जब चाहे अपनी बीवी के जिस्म के किसी भी हिस्से को उसकी इजाज़त से छू सकता है, पकड़ सकता है, मगर शर्मगाह को छोड़कर। शर्मगाह को चूमना या उसके साथ खेलना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। शोहर को अपनी बीवी की शर्मगाह के साथ खेलना या उसे चूमना नहीं चाहिए। इसके अलावा देख सकता है, छू सकता है, पकड़ सकता है, मगर बिला ज़रूरत ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नंबर 13, क्या बीवी अपने शोहर के नफ्स को मुंह में लेकर चाट सकती है या शोहर के नफ्स के किसी भी हिस्से को बीवी अगर मुंह से चाटे तो क्या ये गुनाह होगा? मियाँ बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को मुंह में लेना या चाटना नाजायज़ और हराम है। शर्मगाह एक निकासी की जगह होती है जहाँ से जिस्म के अंदर का गंदा पानी और गंदा मल बाहर निकलता है जो नजिस होता है, इसीलिए मियाँ बीवी को इस हरकत से बचना चाहिए। नंबर 14, शोहर के कहने पर क्या बीवी रात को शोहर के साथ मुख्तसर कपड़े पहनकर सो सकती है? यानी पूरे कपड़े ना पहने बल्कि
शर्मगाह और पिस्तान को ढकने के लिए छोटे कपड़े पहनकर क्या सो सकती है? बीवी का अपने शौहर के सामने मुख्तसर कपड़े पहनकर आना ये जायज़ है? मतलब बीवी अपने शौहर के सामने छोटे कपड़े पहनकर या केवल अपनी शर्मगाह को ढक कर आ सकती है और रात को सो भी सकती है, ये जायज़ है। नंबर 15, क्या मियाँ बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं? जी हाँ, मियाँ बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, यह जायज़ है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दोनों अपनी अपनी शर्मगाह को ढक कर ही गुस्ल करें। मतलब बीवी अपनी शर्मगाह को किसी कपड़े से ढके और इसी तरह शौहर भी अपनी शर्मगाह को ढकने के लिए निकर या लुंगी पहने और फिर दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं। नंबर 16, क्या मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के ज़ेरे नाफ के बाल काट सकते हैं? मियाँ बीवी को एक दूसरे के ज़ेरे नाफ के बाल यानी शर्मगाह के बाल नहीं काटने चाहिए। अपने अपने शर्मगाह के बाल काटे, मगर एक दूसरे के काटना यह अदब के लिहाज से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शौहर माजूर है, बीमार है या किसी बड़ी मजबूरी में है कि शौहर अपने बाल खुद नहीं काट सकता है या बीवी अपनी शर्मगाह के बाल खुद नहीं काट सकती है, तब शौहर अपनी बीवी के और बीवी अपने शौहर के बाल काट सकती है। मगर बिना किसी कारण के सिर्फ शौक़ या मज़े के लिए ऐसा करना ये गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 17, क्या पूरे कपड़े उतार कर हम बिस्तरी करना जायज़ है? जब मियाँ बीवी निकाह में आ गए तो सारे पर्दे ख़त्म हो गए। अब शौहर और बीवी जिस हालत में भी हम बिस्तरी करना चाहे कर सकते हैं, ये जायज़ है। एक हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में रहे तो हज़रत आयशा ने आपका कभी जिस्म मुबारक नहीं देखा और ना ही आपने कभी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिस्म मुबारक नहीं देखा। एक और हदीस में है कि आपने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला हया को पसंद करता है। लिहाजा अगर आप इन अहादीस को सामने रखिए तो मसला ये है कि पूरे कपड़े उतार कर हम बिस्तरी जायज़ तो है, मगर कमरे में इतना अंधेरा होना चाहिए कि एक दूसरे का हाथ भी ना चमके। नंबर 18, क्या एक रात में बीवी के साथ कई बार हम बिस्तरी कर सकते हैं? अगर शौहर के अंदर पावर है, ताकत है, स्टैमिना है और बीवी भी राज़ी है तो एक रात में कई बार हम बिस्तरी करना जायज़ है। लेकिन एक रात में कई बार हम बिस्तरी करना ये सही भी नहीं है। इससे धीरे धीरे शौहर के जिनसी ख्वाहिशात कम होने लगते हैं और वो कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए एक रात में एक ही बार हम बिस्तरी करें, कई बार करने से बचना चाहिए। आप तो कर लोगे, लेकिन अगर वक्त जैसे जैसे गुजरता जाएगा आपकी ये आदत इसमें दिलचस्पी ख़त्म होती जाएगी और आप पहले की तरह नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी बीवी की भूख उस वक्त बढ़ चुकी होगी, तो इस वजह से आपको हम बिस्तरी दायरे के अंदर रहकर ही करना चाहिए। इसीलिए एक रात में एक ही बार हम बिस्तरी करें या बहुत तो 2 बार हम बिस्तरी करें, कई बार करने से बचना चाहिए। नंबर 19, हम बिस्तरी से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसके जिस्म को मालिश करना या उसके जिस्म के साथ खेलना या सहलाना, क्या ये सही है? तो क्या ऐसा करना जायज़ है या नाजायज़? हम बिस्तरी से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसके जिस्म पर मालिश करना बिल्कुल सही है, बल्कि ऐसा करने से मियाँ बीवी दोनों के बीच और ज़्यादा प्यार बढ़ता है। अगर शौहर का हम बिस्तरी करने का मन है और बीवी राज़ी नहीं है तो ऐसे में शौहर अपनी बीवी को तैयार करने के लिए ऐसा कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नंबर 20, क्या खड़े होकर या बैठकर हम बिस्तरी करना जायज़ है? हम बिस्तरी का बेहतरीन तरीका बिस्तर पर लेट कर करने का है, मगर बैठकर या खड़े होकर करने से मना भी नहीं किया गया है। इसका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। एक जगह आता है कि बीवी के पिछले हिस्से को छोड़कर जैसे चाहो हम बिस्तरी कर सकते हो, मगर बेहतर तरीका लेट कर ही होता है। मेरे दोस्तों, ये थे 20 हम बिस्तरी से मुतालिक सवाल और उनके जवाब। ये सभी मसला हर मुसलमान भाई बहन को पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी मसलों के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपके दिल में कोई और सवाल है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शादीशुदा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।